also. So what my program is that I have an array, the elements in it, then I want to find particular element in it. Right now I will not take it from keyboard. I'll just plug in some element and what I call the key, we usually call in arrays, and then try to see if it is in an array or not. And depending on that, I will message element is found, and if it is not found, then I will message element is not found. So I may have two messages. So this is gonna be my dot model small. Okay, dot model small, and then I will have a dot data. In data, I will have firstly the elements. Okay, I call it elements, and then that will be db, and then I got 1, 2, 3, 4, 5. So these are my elements in it. Okay, and then maybe I say here it's a numbers array. Maybe I call it's a big writing num array. Okay, now in this num array, I have to find an element, particular element. Then accordingly I will message, I say msg1 db, and then I say element is found in num array. Okay, and it's the dollar sign, and then I got a message too. Sayyid Athar has came. I got db, and I say element is not found in num array, and if the dollar sign. Okay, so I got a couple of strings here, message 1 and message 2. Then I will have the key, what I want to find. Maybe the key is db, and I put it in say 5, which is there, or any element you wish to like. But next time we will like to get it from the keyboard, which element we ask the user. Okay, right now I'm making it very simple, and I just concentrate on other things. Now common sense is I have to print this message twice, right? Either I have to print element is found in num array, or I have to print element is found. फर्ज कीजिए मिल गया तो प्रिंट होगी element is found in num array. अगर नहीं मिला तो प्रिंट क्या होगा? तो प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं हम? कोई बताएगा मुझे? What we do to print? Zero 9h. Drop 09h in what? Tell me exact steps. Yes, in AH, yeah. Open the mic and speak. What are the exact steps we have to do when we want to? First of all, we have to transfer the data in accumulator register. AH. AH में क्या करेंगे? Add the data. Data transfer, sir. Add the data. नहीं वो हो गया दूसरी बात. मैं कह रहा हूँ मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी मैंने डॉट कोड नहीं लिखा. हमें पहले ऑफसेट इसका डालना है ना सर. वो छोड़ो, वो डॉट कोड में हम लिखेंगे ना. वो मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हमारे पास क्या कोड लिखना पड़ता है? आतेरा इज राइटिंग दैट इज मूव AH09H, और उसके बाद दूसरी लाइन क्या लिखनी पड़ेगी? Why is she calling? She is your student. Is anybody waiting? No. Safia. Yes, Safia. हाँ, अस्सलाम वालेकुम. आवाज कम आ रही है. हाँ जी. क्या मसला है? हाँ, हेलो, आवाज बहुत कम आ रही है. आपकी क्लास चल रही है ना? व्हाई आर यू नॉट इन क्लास? हाँ जी, आपकी क्लास चल रही है. व्हाई आर यू नॉट इन क्लास? पता नहीं क्या मसला है इसका.
Anyways, what I'm saying is, ये मत 7860 वेस्ट टाइम करते हैं, क्लास जब होती है उसी वक्त कॉल करते हैं। अब ये रिक्वेस्ट भेज रही है इसकी, इसने रिक्वेस्ट ही नहीं भेजी है, अब आ गई इसकी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट भेजने से पहले फोन कर रही है। एनीवेज, शी मे बी कमिंग नाउ। Now what I'm saying is, Tabir, admit. मुझे जैसे आप बता रहे हैं, इंशा को यूं बता रही है कि मूव डीएक्स में ऑफसेट मैसेज की करना पड़ेगा। यस, सो कुल मिला के मुझे 3 स्ट्रिंग्स करने पड़ते हैं ना, लाइक मूव इनटू एएच, ये करना पड़ता है ना 09H, और उसके बाद मुझे क्या करना है, या तो मैं वैसे कहूंगा जैसे कि इंशा को यूं बता रही है कि मूव इनटू डीएक्स ऑफसेट ऑफ MSG1 in fact here, or I could do here load effective address, okay, into the DX of some message, say for example MSG, right, and then call the interrupt 21H. Okay, now in this scenario I have to do this thing twice, isn't it, because I have to display either this string or either this string. So अगर मिला तो मुझे उस वक्त AH में 09H करना पड़ेगा, और उसके बाद DX में मैसेज 1 डालनी पड़ेगी, ठीक है ना, और उसके बाद इंटरप्ट 21H कॉल करना पड़ेगा। अगर नहीं मिला तो उस सूरत में भी मुझे पहले AH में 09H करना पड़ेगा, उसके बाद DX में मैसेज 2 डालनी पड़ेगी, और इंटरप्ट 21H कॉल करना पड़ेगा। यानी कि मुझे ये 2 बार करना है, ये 3 लाइन ऑफ कोड मुझे 2 बार करना है कि नहीं करना है? क्योंकि if I want to print MSG1 or I want to print MSG2, at the time of printing MSG1 I have to do this thing, these three line of code. At the time of doing MSG2 I have to again do these 3 line of code. What do you say? तो इसका मतलब अगर मेरे प्रोग्राम के अंदर मुझे 100 स्ट्रिंग्स को प्रिंट करना है, I have to do this 3 of line 100 times, isn't it? तो इसके लिए मेरे पास एक तरीका दिया गया है, वो इसी डेटा में, डेटा सेगमेंट में ही मैं एक मैक्रो खड़ा करूंगा। क्या करूंगा खड़ा? मैक्रो। So the macro name I will call as a print, okay, and I will name it as a macro. I'm telling it's macro, and I'm passing MSG to it, and here I say end macro, okay, ENDM. Now whenever I have to, you know, I create my own code now called print. Now print will do printing for me, okay, this print will do printing for me, this will do these 3 line of code automatically. Only thing is I have to pass any message, जैसे function को pass करते हैं, message 1 pass करनी है तो message 1 pass करूंगा, that will go into the MSG. अगर message 2 pass करनी है तो that will go into the MSG. So MSG will be a container जिसको मैं pass करूंगा, जो भी string मुझे pass करनी है वो MSG में जाएगा, फिर MSG में वही होगा जो आपने pass इसको किया। यानी कि अब आपको बार बार 3 line of code लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब भी आपको प्रिंट करना होगा, you just simply say print MSG1, print MSG2, print MSG3, जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे। So this thing is called as a macro. What is called? जिस तरह आप हैश डिफाइन करते थे अपने सी में, हैश डिफाइन ऊपर लिखा कुछ, वो भी एक मैक्रो होता है। फिर जहां आपको वो जरूरत होगा वो सारा कोड, जैसे आपने कहा printf, ऊपर लिखा आपने printf whatever, हाँ, एंटर द स्ट्रिंग, ठीक है, और यहां से लिखा इसको p, हैश डिफाइन करके, और जहां भी आप p लिखोगे अब वो सारा कोड उसकी जगह आएगा। ऐसे ही जहां आप प्रिंट लिखोगे उसकी जगह ये सारा मैक्रो उठ के चला जाएगा, ओके, और जो आप उसको पास करोगे स्ट्रिंग, दैट स्ट्रिंग विल बी पास्ड इनटू दिस MSG, so this becomes a macro. Now I use the dot code to do the thing. In the dot code, anyone tell me what to do first? Start label, start start. Then what should I do? Move into AX, comma, at the rate of data, and move into the what? DS, shabash bolo, comma, AX. So I'm initializing the data segment register. Then load effective address of SI, comma, of that. What is that? Num. See what I'm doing here. So last time we said we can do it, either we can say move into SI, comma, offset of num.
यानी कि एरे का एड्रेस फर्स्ट एड्रेस SI में डालना है ना, सोर्स इंडेक्स which will point to that location. So we can do it two ways. Either we say जो previously हमने किया that move into SI offset of, हमने ऐसे किया था ना, हमने कहा था move into SI offset. किसका offset? जो मेरी array थी, यहाँ पे array का नाम num है. So I could do this way or I could do load effective address, जैसे मैंने यहाँ पे किया. Either I could say load effective address into the DX register, or I could say जो इंशा कोयुम ने लिखा like this, move into DX. मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इंशा कोयुम का, Control V, offset of MSG. I can do this way, or I could do load effective address. इसके से भी मुझे एड्रेस आ जाएगा पहला. So इसी तरीके से मुझे अगर एरे को इंडेक्सिंग करनी है, वो सोर्स इंडेक्स में मुझे पता है, वो पिछली बार हमने सीखा, ठीक है ना. नाउ आई एम पुटिंग दैट थिंग, जो नम है, नम एरे है, उसका एड्रेस में डाल रहा हूँ SI से. Either I can do move and use the offset, or I can say load effective address. So both way I can do it. और मेरे पास एक और चीज मुझे करना होगा, एक तो मैंने सोर्स इंडेक्स किया और एक काउंटर रजिस्टर में करूंगा, ताकि मैं कितने एलिमेंट्स मुझे चलने हैं, 5 एलिमेंट है. सो आई विल मूव इनटू व्हाट, चलो बता मुझे किस में करूंगा मूव, काउंटर के लिए किस में मूव करूंगा, मूव इनटू शाबाश CX. वेरी गुड, वेरी गुड. CX कामा कितना करूंगा, 5. ठीक है, तो मैं 05 लिखूं या 5 लिखूं, व्हाटएवर इट इज. सो 5 मैं मूव करूंगा CX में. ठीक है, दैट मींस इट विल मूव फॉर 5 टाइम्स. देन आई नीड टू हैव अ लूप. सो लूप के लिए मुझे यहाँ पर है एक लेबल हियर, जिसको मैं कह रहा हूँ. सो आई विल कम बैक टू इट. हियर को मैं आऊंगा वापस उधर से. सो व्हाट शुड आई डू, I should get the element, but I need also the key element. I also need what? I somewhere need the key element. ठीक है ना, वो मैंने किया हुआ है DB5, यानी कि की में मैंने 5 डाला हुआ है जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ. अभी मैं यहीं से लिख रहा हूँ, कल मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के ये लूंगा यूजर से. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखूंगा, कुछ नहीं डालूंगा इसमें, फिर वो यूजर से मांगूंगा कि कौन सा एलिमेंट आप ढूंढना चाह रहे हैं. अभी मैं सिंपल कर रहा हूँ, मैं बाकी चीज सिखा रहा हूँ, वरना इसी में टाइम जाएगा. सो यहाँ मैं सीधे लिख रहा हूँ 5. ठीक है ना, ओके. अब मैं एक एक करके एलिमेंट उठाऊंगा इस DB में से, डालूंगा किसी रजिस्टर में, और वो चेक करूंगा किसके साथ, इस की के साथ, क्या वो ये है या नहीं. अगर नहीं है तो आगे जाओ, फिर दूसरे को देखो, अगर नहीं है तो आगे जाओ, अगर दूसरे को देखो, अगर है कहीं पर है, जैसे मिल गया यहाँ पे, जैसे ये 4 है या मेरा 3 है, ये पहले ही मिलेगा ना, तीसरे पर ही मिलेगा, तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है, फिर मुझे भागना चाहिए, फिर मुझे मैसेज करना चाहिए एलिमेंट मिल गया. ठीक है ना, क्योंकि मैं एक एक करके कंपेयर करूंगा, पहले 3 करूंगा 1 के साथ कंपेयर, क्या तू है, नहीं है, आगे जा. सो हु विल गो फर्दर, आगे कैसे जाएंगे हम, यूजिंग विच रजिस्टर, SI. क्योंकि सोर्स इंडेक्स में मेरा ऑफसेट लगा है, वो इसके साथ अटैच है. SI is pointing to this. After I have to increment SI. That means if 3 is not in the first element, SI will point to this now. How? I will say increment SI. Now SI will go to the next element. If it is not there, I will go to the next element. Increment SI से. If it is matched, मिल गया ना एलिमेंट, क्या मुझे आगे जाना चाहिए. अब मान लीजिए इसके बाद और भी बहुत सारी एरे है, ये 100 की लॉन्ग है. अब जब मिल गया तो आगे जाने की जरूरत, वो तो फजूल होगा ना. I should not, I should exit here. So जो ही मिल गया, I should exit. I should jump out of the loop. I should jump out of loop. ठीक है ना, लूप से बाहर आना चाहिए और ये स्ट्रिंग प्रिंट करनी चाहिए कि भाई एलिमेंट मिल गया, और एग्जिट करना चाहिए. अगर नहीं मिला, नहीं कब मिला, जब मुझे पूरे लीनियर सर्च है ना, मैं सारी एरे ढूंढ मारता हूं. मान लीजिए मैं यहाँ पे 8 था, मैंने 5 भी देखा, नहीं है. जब एंड हो गया, तो खुद लूप से बाहर निकलेगा. ठीक है, जब बाहर से लूप से बाहर निकला, तो उस वक्त मैसेज प्रिंट होनी चाहिए कि भाई एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन एरे. ठीक है जी, और उसके लिए मुझे मैक्रो लगा हुआ है प्रिंट. ठीक है, तो जब भी मुझे कोई मैसेज प्रिंट करनी होगी, मैं कहूंगा प्रिंट PRINT एंड आई विल सेंड इट दैट मैसेज जो मुझे प्रिंट करनी है. मैसेज 1 अगर प्रिंट करनी मैसेज 1, मैसेज 2 अगर प्रिंट करनी मैसेज 2, आई विल कॉल द प्रिंट. रेस्ट ये 3 लाइंस ऑफ कोड मुझे लिखने की बार बार जरूरत नहीं है. दीज 3 लाइन ऑफ कोड इज नाउ विद दिस प्रिंट मैक्रो. ठीक है, बात में आ रही है.
व्हाट इज सिमिलरिटी, बेस्ट एवरेज एंड वर्स्ट केस, नहीं वो डिफरेंट हो गया, बेस्ट एवरेज वर्स्ट केस हो गया डिफरेंट। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम इसकी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपली सर्चिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें होंगी, या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। फिर दूसरा हो गया कि लीनियर सर्च की खुद वो होती है सर्च एल्गोरिथम का बेस्ट एवरेज एंड वर्स्ट केस, जिसे हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस से फिर सॉल्व कर दो, दैट्स डिफरेंट स्टोरी, वो अलग चीज हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो ये एलिमेंट प्रिंट होगा और आगे जाने की जरूरत नहीं है, भागो। और अगर नहीं मिला तो दूसरा ये जो है एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन एरे, इसको प्रिंट हमें करना है, राइट। सो हाउ शुड आई डू इट नाउ। सो मेरा फिलहाल क्या हो गया, मैंने एक एरे बनाई इसमें नंबर्स किए, फिर एक मैसेज बनाई जिसमें एरे नॉट फाउंड और एरे फाउंड की, और एक एलिमेंट की बनाया जो बता रहा है कौन सा एलिमेंट आप ढूंढना चाह रहे हो। फिर मैंने एक मैक्रो बनाया जो कि इंटरप्ट 21 है, जो कि स्ट्रिंग प्रिंटिंग का जो हमारे पास 3 लाइन्स ऑफ कोड है, वो 3 लाइन्स ऑफ कोड मुझे बार बार ना लिखने पड़े, इसलिए मैंने मैक्रो लिखा प्रिंट, उसका नाम रखा, जो भी आपको नाम मर्जी है आप वो लिख सकते हो, आप प्रिंट एफ कह सकते हो यहाँ पे, तो प्रिंट एफ आ जाएगा। तो मैक्रो एमएसजी और कुछ लिखना यहाँ पे, ताकि जिस जो जब मैं पास करूंगा इसको वो इसमें जाए, चाहे आप एम ही लिखें कोई मसला नहीं, फिर यहाँ पे वही लिखना है जो आपने यहाँ पे लिखा वो यहाँ लिखना है। और मूव एच में 09h करेंगे पहले, फिर dx में वो जो आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो इसको वो लिखेंगे यहाँ पे, और इंटरप्ट 21h, और ये हो गया एंड मैक्रो। अब जब भी आपको प्रिंटिंग करना है आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ये सारी चीजें, तो जितनी भी स्ट्रिंग्स प्रिंट करनी है आप सिर्फ प्रिंट को कॉल करो और वो मैसेज भेजो उसको। ये बात समझ आ गई सबको? इज एवरीबडी गेटिंग दिस पॉइंट? मैक्रो का कॉन्सेप्ट आ गया समझ? ओके, नाउ आई एम सेइंग कोड स्टार्ट। ओके, मूव इनटू एक्स, अगर मैं स्टार्ट नहीं भी लिखूं तब भी चलेगा यहाँ पे। ओके, इस जो शॉर्टकट में होता है इसमें स्टार्ट भी लिखने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू लाइक दैट इज गुड, इफ यू डोंट राइट इट इज ओके, सो डोंट राइट। सो मूव इनटू एक्स एट द रेट डेटा and ds में x boilerplate, so that I will initialize the data segment register, we will know that। and अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सोर्स इंडेक्स को पॉइंट कर रहा हूं टुवर्ड्स द एरे यूजिंग लोड इफेक्टिव एड्रेस, एंड cx में डाल रहा हूं 5, यानी कि लूप के लिए। अब मैं लूप के लिए तैयार हूं, अब मैं एक एक करके एलिमेंट लाऊंगा। मैं कहूंगा मूव किसी रजिस्टर में, मान लीजिए मैंने bl रजिस्टर में डाला, मूव इनटू bl कामा si डालूंगा। सो इफ शुड आई ड्रॉ si or should I drop bracket si? Yes, should I drop it into si or bracket si? Insha Koyum is saying bracket, nice. Insha Koyum is giving a lot of replies, that's very good. So and Mehrajuddin also, there are few students who are very active, I really like it, Atira etc. The rest of the students are not active, I wish that all of you are stay active, okay na? And give me the answers. Mohsin is here giving answers, that's nice, but all of you should be active and be proactive, and just इससे आपको भी मजा आएगा, मुझे भी आएगा मजा पढ़ाने में। Now what is happening by it? Move into BLSI. What is happening? Because SI is pointing to 1. So one content of SI, that is 1, will go into the BL. Now when one will go into BL, what should I do now? Yes, tell me, what should I do? Now 1 goes into the BL, what should I do? Hina Fayaz answering, nice. What 1 goes into the BL? मुझे करना क्या चाहिए? मुझे ये क्या करना चाहिए? Compare. Very good. Hina Fayaz is telling. No, I should compare. Hina Fayaz is saying. Atira is saying right. I should CMP. Atira said perfect. That is CMP, not CMPR. Okay. Hina Fayaz said in English actually, and Atira converted into the assembly language, that I should compare this whatever is in the BL with what? What should I compare with? Key. Very good. I should compare with the key. I should compare it with the key. So compare, but where is the key? Key is where? In the memory. I cannot compare memory with this. So I should move here when I am doing load effective address and all and CX and all. I should move the key. Very good. With the key I should move.
but I should move key with the AL. Move key here because key is in a memory, na? That is in the memory in a data segment, as you could see. So I will get that 3, whatever you want to find in the AL. Now what should I compare here? I should compare AL with BL. In the BL, there is the element, first element of array, and in the AL is the key. Right? Now I should compare the two. If they come same, okay? If they come same, so that is called as JZ, jump on 0. If the comparison, if they minus it, how do they compare? They do the minus or XOR of the two. And if the answer comes all zeros, that means it was all same. Okay. So if it is coming to the Z, I say got it. Or I could say properly found. I found it. That means you go somewhere which is called as a found, F-O-U-N-D, found. It is the key here. So in the found, what should I do? Because I got it. If I, मान लीजिए मैं ये पहले ही एलिमेंट था, ये पहला ही एलिमेंट था, मान लिया हम पहुंच गए यहाँ पे 3 पे, तो ये मिल गया ना 3, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है. It should go to the found. And what should I do in a found? Can anyone tell me what should I do the found? I should do 2 things in a found. First, print the string. Yes, print the message 1. Very good, Mohsin and Atira. I should print the, then exit. Very good, Hina Fayaz. MashaAllah. That's really nice. Then exit. So I should print first. So for that, I have macro. The name of the macro is print. And I will send it MSG 1. That means found message. Okay. Then I should say dot exit, right? Then I should say dot exit. I don't need to do anything else. That's it, done. We are done. Right? Nice, Atira. So many of the students are answering properly. Hina Fayaz is there. Just CR thi, is it CR Hina Fayaz? Are you Hina Fayaz, which is CR? Yeah, only 10 minutes left. Okay, nice. मैं आप ही को ढूंढ रहा था, मैं आप क्यों नहीं मैसेज कर रही हो? मैं बोलने वाला था, लेकिन मुझे नजर पड़ गई शायद आप ही हो. Okay, anyways. So rest of the guys also try to answer. That is nice. So that means अगर मिल गया तो ये found की ऊपर जाएगा और message 1 को print करेगा. लेकिन अगर नहीं मिला, so that means ये सेम नहीं था. अगर ये सेम नहीं था, jump on 0 नहीं हो जाएगा. ये होगा ही नहीं क्योंकि ये सेम नहीं था. So it should go what? What should it do? Yes, tell me. शाबाश, क्या करना चाहिए? ये क्या? Increment SI. Very good, Hina Fayaz. MashaAllah. I'm really loving it. Increment SI. The way you guys are answering is perfect. इंक्रीमेंट आगे जाओ, SI को आगे पॉइंट करो और फिर क्या करो? फिर वापस जाओ उसके पास, किसके पास? लूप हियर के पास, है ना? देखो ये नहीं मिला, 3 1 के साथ है, नहीं है, तो ये जंप ऑन 0 नहीं होगा. तो इंक्रीमेंट SI विल पॉइंट टू 2 नाउ. SI विल पॉइंट टू 2. देन उसके बाद क्या 2 अब जो SI जो 2 पॉइंट करता है, कंटेंट ऑफ 2, जो सेकंड एलिमेंट है, दैट इज 2 आल्सो, दैट विल गो इनटू द BL. AL BL के साथ कंपेयर होगा. AL में क्या है? की. क्या 3 जो की में 3 था 2 के बराबर है? नहीं है, तो जंप ऑन 0 फाउंड के पास नहीं जाएगा, फिर से इंक्रीमेंट SI होगा. सो इट विल पॉइंट टू दिस एलिमेंट. नाउ इट इज 3 एंड AL में 3 बैठा ही है ऑलरेडी, बिकॉज की जो हमारी है, की में जो हमारे पास है वो 3 है, दैट वी हैव पुट इट इन द AL. सो AL में हमेशा 3 था. क्या 3 के बराबर है? हाँ, फाउंड मिल गया, भागो बाहर, प्रिंट करो, दिस इज. तो ये हमारा चलेगा आराम से यहाँ पे, लेकिन अभी हमने नॉट फाउंड के लिए काम नहीं किया. ठीक है ना? If I give it a go, it's coming on the screen. Run it. Now element is found in num array. It's coming properly. लेकिन फर्ज कीजिए अब एलिमेंट ऐसा है कि जो हमारी एरे में है ही नहीं. एलिमेंट ऐसा है, मान लीजिए 8 है, 8 है उधर नहीं है. So what will happen if I emulate this? If I run it, okay, I run it. It is still saying element found. Element is found in array, क्योंकि मैंने not found के लिए काम किया ही नहीं. क्योंकि जहां मैं फाउंड पे ऊपर काम कर रहा हूं, जब ये लूप से बाहर निकलेगा ना, ये लूप करता रहेगा, फाउंड करता रहेगा, नहीं मिला, कभी नहीं मिला इसको, तो ये लूप से बाहर जाएगा. जो ही लूप से बाहर जाएगा, ये तब भी ये कोड करेगा. सो आई नीड समवट हियर टू जंप ओवर हियर, ताकि ये कोड ना हो.
और कौन सी मैसेज हो, वो वाली नॉट फाउंड वाली। सो व्हाट शुड आई डू फॉर दैट? तो जब ये लूप से बाहर निकला, यानी कि इसने अगर लूप के अंदर इसको कहीं पर मिला तो यहां से ये जंप मार के जाएगा हियर और करेगा मैसेज प्रिंट, मिल गया भाई। जब लूप पूरी हो गई है, लूप से बाहर आ गया है, उसका मतलब है कि इसको कहीं नहीं मिला, ये कोड चला ही नहीं, तब उसी सूरत में लूप पूरी चलेगी, है ना। पहले सुनो मेरी बात, उसी सूरत में लूप पूरी चलेगी जिस सूरत में नहीं मिलेगा एलिमेंट। सो इट विल कम आउट ऑफ द लूप। सो जब ये आउट ऑफ लूप आएगा, मुझे पता है कि इसको नहीं मिला, है कि नहीं, देयर आई विल प्रिंट MSG2। मुझे वो लिखने की जरूरत नहीं है, मूव इनटू AH09H, देन लोड इफेक्टिव एडर ऑफ DX, MSG, इंटरप्ट 21H, वो सारा एक ही बार लिखा है मैंने प्रिंट में, मैक्रो में, ठीक है ना, मैक्रो में लिख चुका हूं मैं, अब मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। दैट इज आई एम डन, आई कैन राइट प्रिंट एंड MSG2। लेकिन अगर मैं ये कर रहा हूं तो क्या होगा, देखिए इमुलेट, कोई बताएगा क्या होगा? एलिमेंट इज नॉट फाउंड कह रहा है इन मेरे, लेकिन फिर भी कह रहा है एलिमेंट इज फाउंड इन एरे, क्योंकि इसने जो यही मैसेज की, क्योंकि ये एलिमेंट नहीं मिला इसको, 8 नहीं था, इसने पूरी लूप चलाई, 100% से लूप चलाई। जब सब लूप चल के बाहर आ गया ये, तो इसने ये प्रिंट मैसेज 2 की, इट हैज प्रिंटेड द मैसेज 2, ठीक है। लेकिन फिर ये मैसेज इसने तब भी की, क्योंकि इसको आगे तो जाना है ना, ये आगे फिर भी इसको करेगा। तो कुछ होना चाहिए कि यहाँ पे ये भागना चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूं? मोहसिन इज सेइंग, Mohsin is saying again same dot exit. Very good, Mohsin. Nice. Or you could say skip. जो इंशा कोयूम बता रहे हैं skip, यानी कि यहाँ पे मैं कहूंगा कि आप skip के यहाँ पे जाओ, तो एक और लेबल लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो बेटर ये रहेगा जैसे आपका वो कह रहा है, क्या नाम था इसका, मोहसिन कह रहा है कि डॉट एग्जिट करो यहाँ पे, ठीक है ना, यहीं पे डॉट एग्जिट करो। एग्जिट का मतलब प्रोग्राम खत्म, तो यहाँ पे एग्जिट हो गया ना, तो ये चलेगा ही नहीं। अगर मिला, अगर इस लूप में कहीं पे मिला, इट विल जंप फ्रॉम हियर टू दिस फाउंड, यानी कि ये वाला कोड स्किप हो जाएगा, ठीक है। इट विल गो टू द फाउंड एंड प्रिंट मैसेज 1 एंड प्रिंट इट, अगर यहाँ पे कहीं मिला। अगर इस लूप में कहीं पर नहीं मिला, ठीक है, ये लूप से बाहर निकलेगा, ये करेगा प्रिंट मैसेज 2 कि नहीं मिला सर, और उसके बाद डॉट एग्जिट करेगा, यानी कि इसको चांस नहीं मिलेगा रन होने के। डज इट मेक सेंस? Now, if I give it a go and run it, here we go. Element is not found in num array. और इसने ये element is not found यहाँ पे प्रिंट किया ना मैसेज 2 पे, ठीक है, इसने यहाँ पे किया मैसेज 2 पे किया, उसके बाद एग्जिट मारा, और ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कोड फाउंड प्रिंट मैसेज 1, ये हुआ ही नहीं। ठीक है जी, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? Any questions regarding this? Any questions you have, you can tell me. Insha Koim saying no, sir. You got it? How it worked? How many students we had today? 23 only. So is this clear? So is this clear? Tell me, clear or not clear? Anybody having question, you can say. So with that, it comes to the end of this lecture. I will take a screenshot of it. Control V. I will upload this video also on the YouTube. Why we use JZ? Yeah, I will tell you. Jump, because I will tell you why we use the JZ, the jump on 0. Necessary define macro inside data segment. Yes, absolutely, because macros, it is kind of a data. Okay, I will show you different way also later, but first let me answer the JZ question. So JZ is saying here, jump on 0. देखो, जब ये AL BL के बराबर होगा, AL में क्या था, की आपकी, आपने यहाँ मूव की जो आप ढूंढना चाहते हो, जैसे आपने ढूंढा 3 हम ढूंढ रहे थे, सो AL में 3 है, और BL में आप एरे से उठा के एक एक करके लाते हो और कंपेयर करते हो AL के साथ। अगर वो मिला, यानी कि ये कंपेयर कैसे करेगा, इनको XOR करेगा आपस में,
और आंसर निकलेगा अगर सेम हुआ, दोनों सेम हुआ तो वो जीरो जीरो आ जाएगा। आंसर क्या आएगा इसमें? इसमें आंसर आएगा जीरो। एल में होंगे जीरोस। तो जेजी देखता है कि क्या एल में जीरोस बैठे हैं कि नहीं बैठे, क्या जीरोस है कि नहीं है, बेसिकली जीरो फ्लैग सेट होगा। तो जेजी वही देखता है, यानी कि उसका मतलब ये होगा कि क्या ये सेम है या नहीं। अगर ये सेम है तो जीरो फ्लैग विल बी सेट, दैट मींस इट विल बी ऑल जीरोस। तो उसका मतलब है जेजी इज ट्रू। अगर ये ट्रू हुआ कि दैट मींस अगर जेजी जीरो है, ट्रू है, व्हाट डज दैट मीन कि ये सेम है। तो अगर ये सेम है तो मिल गया। तो देन वी शुड जंप टू द फाउंड, इट विल जंप टू दिस लोकेशन। आई शुड नॉट गो फर्दर, आई शुड रादर प्रिंट मिल गया, मैसेज वन मींस मिल गया, एंड एग्जिट। Atera, we have less than one minute left. Are you done with this question? Okay, that's all for today. We will come up with more on macros tomorrow and answer the other questions because it's now end of time. And next class we will be giving soon. I will unconfirm. Okay, I will text you when will be the next class start. Okay, so see you next time. Until then, ma salama.